Okay, students. So in previous class we learned about Coulomb's law, okay, which is applicable for 2-point charges. But in case suppose we have many charges, so what is the force? How we will calculate the force between many charges? So this is our topic. So topic is force between multiple charges. Force between multiple charges. Now student, suppose I have one charge here and one charge here. This is charge uh, Q1 and this is charge Q2, and distance between them is R. Now if I'll say what is the force on charge Q1 due to charge Q2, so easily you can tell me that, sir, according to Coulomb's law, force on 1 due to 2 F12 with vector sign is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. Okay, R21 you can write here, R21, and the direction of suppose R21 unit vector in this direction, so R21 with vector sign you can easily tell me. Okay, now just consider the same case but with extra charge. चलो मैं एक एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ. नाउ आई विल टेक वन एक्स्ट्रा चार्ज. सपोज वो चार्ज मैंने यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर ले लिया एक चार्ज, एंड दिस इज चार्ज Q3. नाउ स्टूडेंट्स, so if I'll ask now what is the total force acting on Q1, so on charge Q1 there are two charges putting force. एक तो चार्ज Q2 है, ओके, एंड दूसरा चार्ज Q3 है. सो स्टूडेंट्स, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, सो वी कैन नॉट राइट डायरेक्टली F1 एंड F2, F1 plus F2, that will be total force on charge, given charge. But now see, now what is the direction of force on charge Q1 due to charge Q2? This will be the direction. I will write force on 1 due to 2. And what is the direction of force on charge Q1 due to charge Q3? So this is what F13 with the vector sign. Now see, one vector is in this direction and one vector is in this direction. So as per your knowledge about vector, you can easily predict that the resultant force will be in this direction, and easily you can calculate that force by using this formula. Resultant vector R is equal to, suppose we have two vectors P and Q, so P square plus Q square plus 2PQ cos theta, right? This was the formula, right? So here we have one force, another force. So in this manner we can easily calculate forces between multiple charges. Okay, if there is some other force, so then that resultant will resolve with the same vector algebra will be applied here, and hence this is called this is our topic, force between multiple charges. And whatever process we have applied, that process is called superposition principle or principle of superposition. So what is principle of superposition, students? Now see, what is principle of superposition? So principle of superposition states that, just a minute. Now, so principle of superposition states that principle of superposition states that when a number of charges are interacting, when a number of charges are
इंटरैक्टिंग, इसको याद भी करते जाओ। इंटरैक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन charge is the vector sum of force, is the vector sum of force exerted on it sorry let me repeat, exerted on it due to all other charges, due to all other charges. This is what our principle of superposition force means. जो भी अब मैंने आपको बताया यहाँ पर means what it says that when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum. Remember, this will be vector sum of force exerted on it due to all other charges. So the total force means you have to add total force, but how you have to add? Vectorly you have to add. Then only you will get resultant force. Okay. And most important line is what? That force between two charges. Okay. Force between two charges is not affected by the presence of any other charge. Now student, let me give you one example. You open next page. Now suppose, let me write first. See what I was writing. Force between two charges, बहुत important है. Force between two charges is not affected by the presence of other charges. What does it mean? Let me open new page. Now see. Okay. Now suppose I have one charge here. This is Q1 and I have one more charge here Q2. So इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा. जितना फोर्स चार्ज Q1 Q2 पर लगा रहा होगा, उतना ही फोर्स चार्ज Q2 Q1 पर भी लगा रहा होगा. ओके. नाउ अगर मैं एक और चार्ज यहाँ पर लाता हूँ, सपोज फॉर एन एग्जांपल आई एम ब्रिंगिंग वन मोर चार्ज Q3, तो क्या इन दोनों के बीच का जो फोर्स है Q1 और Q2 वो कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा? सो स्टूडेंट्स, कुछ भी चेंज नहीं होगा. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज. ओके, जितना फोर्स है उतना ही लगता रहेगा इन दोनों के बीच में. ओके, बट सपोज इफ आई कंसिडर चार्ज 2, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेंटर में कौन सा चार्ज दिया आपने चार्ज कंसिडर कौन सा किया. अगर मैं चार्ज Q2 कंसिडर करता हूँ तो Q2 पर ये Q1 का फोर्स इस तरफ लग रहा होगा. सपोज ये थर्ड वाला चार्ज है ही नहीं यहाँ पर. ओके, ये बड़ा पॉजिटिव चार्ज है और ये थोड़ा छोटा पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? ये इसको इस साइड रिपेल करेगा. ओके, रिपेल करेगा, नो डाउट. ओके, बट अगर मैं थर्ड चार्ज लाता हूं तो थर्ड चार्ज लाने से क्या होगा? ये इस पर इस तरफ फोर्स डालेगा. ओके, अब एक फोर्स इस तरफ, तो जब ये थर्ड वाला चार्ज नहीं था तब ये चार्ज इस तरफ जा रहा था, बट अब ये थर्ड वाला चार्ज आ गया तो ये चार्ज इन दोनों के रिजल्ट मीन्स ये जो चार्ज Q2 है ये ऐसे जाएगा. बट पहले जितना फोर्स लग रहा था अभी भी उतना ही फोर्स लगेगा. मीन्स थर्ड वाला चार्ज लाने से उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना. सो दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टूडेंट्स. एंड इसी को हम लोग जो है थियोरेटिकली प्रूफ करेंगे. ओके, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके,
सो लेट मी मेक आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले तो हमारे पास एक्स एक्सिस होना चाहिए। सो लेट्स मेक एक्स एक्सिस। So this is x axis, this is y axis। चलो ये मैंने इसको y axis बना दिया, y axis हो गया। नाउ सपोज एक चार्ज मैं लेता हूं, एक चार्ज यहां पर है, सपोज ये Q1 है, एक चार्ज यहां पर लेता हूं मैं, Q2 है, और एक चार्ज यहां पर लेता हूं मैं, Q3 है। ओके, सेंटर से Q1 का जो डिस्टेंस है, सॉरी, सेंटर से Q1 का जो डिस्टेंस है उसको मैं R1 देता हूं। ये पोजीशन वेक्टर है तो वेक्टर हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, पहले मैं इसका नाम लिख देता हूं, तो ये आपका हो जाएगा Q1, इधर मैं लिखता हूं, ये हमारा हो गया सपोज Q2, और ये हमारा हो गया यहाँ पर Q3, और इसका जो Q1 का जो डिस्टेंस है दैट इज R1, और पोजीशन वेक्टर है तो डायरेक्शन ये होगा, ये डायरेक्शन इधर जिस तरफ एरो बना हुआ है। और फिर सिमिलरली ओरिजिन से इसका जो है डिस्टेंस Q2 का मैं R2 लिख देता हूँ, और Q3 का R3 लिख देता हूँ। चलो लिख देते हैं, तो ये हमारा हो गया R2, और ये हो गया R3 पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर साइन यहाँ पर बनाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स कट सकते हैं। और ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ओके, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 2 एंड चार्ज 1? सो इसका पोजीशन वेक्टर मैं ऐसे यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँगा, सीधा लाइन ऐसे। एरो देखना, एरो पर फोकस करना बहुत जरूरी है। दिस विल बी R21 मीन्स चार्ज 2 से चार्ज 1 का डिस्टेंस। ओके, ये ऐसे। अच्छा, एंड सिमिलरली यहाँ पर देख लो, ये हमारा ये जो डिस्टेंस होगा 3 से 1 पे कितना होगा, ऐसे, जिसको हम लोग R31 लिख सकते हैं। R31 वेक्टर हो गया ये। ओके, ना हमारा सेंट्रल जो चार्ज है वो Q1 है, Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है उसके लिए हम लोग को डेरिवेशन हमको लिखना है। ओके, तो अगर मैं कूलॉम्स लॉ अप्लाई करूँ, टोटल फोर्स सपोज 3 चार्ज यहाँ पर, अगर मैं n नंबर ऑफ चार्ज भी आप ले सकते हो। ओके, तो सपोज अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1 इज इक्वल टू फोर्स F12, okay, that is force on 1 due to charge 2 with vector sign, plus F13 force on charge 1 due to 3। ओके, अच्छा अभी वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो डायरेक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगा, अब देखो यहाँ पर ये जो चार्ज Q2 है, ये इस चार्ज पर ऐसे इस तरफ फोर्स डालेगा, बिकॉज कूलॉम्स लॉ में मैंने पहले बताया था कि कूलॉम्बियन फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो इन दोनों चार्ज के को एक लाइन से ज्वाइन करोगे तो ये जो डायरेक्शन होगा आपका क्या होगा, ये होगा F12 होगा। सिमिलरली F13 किधर होगा, F13 इधर होगा। सही बात है, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन से ज्वाइन करो। सॉरी, तो ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, लेट मी रिमूव दिस। ओके, देखो ये कुछ ऐसे होगा। ओके, सो ये F13 हो गया।
पहले लिख लेते इसको। तो ये आपका क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये आपका हो गया फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3, और ये क्या हो जाएगा आपका F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके, तो देखो एक वेक्टर यहाँ पर है, एक वेक्टर इस साइड में है, तो रिजल्टेंट किधर होगा, ये तो होगा। तो F1 हमारा क्या होगा, फोर्स ऑन 1 जो डायरेक्शन होगा, चार्ज 1 पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो यही तो होगा। लेट मी ड्रॉ, ये इन दोनों के बीच से निकलेगा रिजल्टेंट, ये ऐसे, ये हमारा क्या होगा F1 होगा। ओके, ये हमारा क्या होगा F1 होगा। बस सारा काम हो गया। अब इसी को हम लोग को लिखना है वेक्टर साइन। अब कैसे लिखोगे इसको, चलो देखते हैं फिर। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1, तो लिखते चलो। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, force exerted on charge Q1, force exerted on Q1 लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली। सो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या दोनों के बीच में, Q1 और Q2 का R12 का स्क्वायर। ओके, और डायरेक्शन के लिए हम लोग को यूनिट वेक्टर R12 कैप, R12 का जो डायरेक्शन होगा उसी तरफ डायरेक्शन होगा इसका भी। ओके, अच्छा इसको मैं एक और फॉर्म में लिख रहा हूँ, अभी यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, बिकॉज यही तो बहुत जरूरी है समझना इसको। इसी को मैं देखो ऐसे लिख रहा हूँ, नाउ सी F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अभी यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, R1 माइनस R2 का स्क्वायर इनटू देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूँ, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। लेट मी एक्सप्लेन, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड साइन के साथ R1 माइनस R2। अब इसमें जो है कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, ये कहाँ से आ गया है ना। लेट मी ड्रॉ वेक्टर साइन, यहाँ पर वेक्टर साइन ड्रॉ कर दो, जो जहाँ जहाँ वेक्टर है वेक्टर। अब कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ये जो R12 कैप है ये क्या है और ये R12 है क्या। तो स्टूडेंट्स डायग्राम में देखेंगे हम लोग, तो अगर हम लोग डायग्राम में देखते हैं तो डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर ये R2 इधर है और ये R12 इधर है और ये R1 वेक्टर इधर है। तो अगर 11th स्टैंडर्ड में अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा, ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा, जो लोग नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ लेना। ओके, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा देता हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पर लगेगा। तो अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के साइन कन्वेंशन में लिखूँ, साइन नोटेशन में लिखूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ R2 प्लस R21 is equal to R1 means what, if two vector head to head, if they can represented by the two side of a triangle, then the third side of the triangle will give the resultant। तो ये R1 जो होगा, ये R2 देखो सेम डायरेक्शन, R2 का साइन इधर है और R21 का भी साइन इधर है, ये दोनों वेक्टर मिलके दो साइड बना रहे ट्रायंगल का, तो ये थर्ड वाला जो होगा दैट विल बी योर रिजल्टेंट। तो अभी यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, सो R21 कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, सो R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और यही तो मैंने लिखा है यहाँ पर।
ये R12 का जो स्क्वायर था वो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो गया। और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है तो ये यूनिट वेक्टर है, R12 क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। तो अभी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर क्या होता है। बेसिकली सपोज मेरे पास एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर, इसमें क्या है, इसमें एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसको इधर लेके आ जाओ, आपको यही चीज मिलेगा। तो इसी को तो R12, देखो यहाँ पर R12 कैप है, उसको R1 माइनस R2 वेक्टर वाले फॉर्म में लिखा है R12, और ये मॉड साइन में। ओके, तो बेसिकली आपका पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखना, तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 मॉड साइन टू द Q, और ये आपका क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। ये ऊपर क्या बचा R1 माइनस R2। ओके, वेक्टर साइन बनाना बहुत जरूरी है बिकॉज वेक्टरली हम लोग लिख रहे हैं, तो ये मिस्टेक मत करना। ओके, सो ये हमारा हो गया फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2। सिमिलरली फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज 3 लिख सकते हैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज 3। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं नए पेज पर। तो सिमिलरली भी लिख देता हूँ, सिमिलरली force on one due to charge 3 can be written as, अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R13। अब यहाँ पर R13 देख लो, ये देखो R13 ये है, R3 ये है, और R31 है, ये R31 321। ओके, मीन्स इन दोनों का एडिशन। ओके, लेट मी राइट हियर। देखो अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करूंगा यहाँ पर मैं, तो R3 प्लस R31 इज इक्वल टू R1। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, R31 को क्या लिख सकता हूँ, R1 माइनस R3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर R1 माइनस R2 था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 माइनस R3 हो जाएगा, R31। तो चलो पहले उस फॉर्म में लिख देते हैं इक्वेशन को। सो Q1 Q2 बाई R31 का होल स्क्वायर इंटू R31 कैप। ओके, तो अभी यहाँ पर देखो, तो अभी यहाँ पर हमारा R1 माइनस R2, ये देखो ये फाइनल इक्वेशन R1 माइनस R2, और ये R1 माइनस R2 का क्यूब था। ओके, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा R1 माइनस R3 हो जाएगा, और क्या सेम प्रोसेस है। तो सिमिलरली अभी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, सी है, सो F13 कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर, यहाँ पर वेक्टर साइन रहेगा, R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर विथ मॉड साइन, मतलब मैग्नीट्यूड इसका, एंड इनटू R1 माइनस R3। ओके, ये यहाँ पर क्या हो गया, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3 हो गया। अब टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1, सो टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1 हाउ यू कैन राइट F1 फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13। तो चलो इसको लिख लेते हैं, तो ये भी वेक्टर साइन, सो F1 इज इक्वल टू, अब F12 क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय
R1 minus R2 with vector sign and cube and into R1 minus R2. ओके, ये हमारा क्या था, वेक्टर साइन। ओके, F12 हो गया ये। फिर इसमें प्लस किसको करना है, F13 को करना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 बाई R1 माइनस R3 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में R1 माइनस R3 वेक्टर साइन। अब यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है। सो Q1 देखो यहाँ पर Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कॉमन है, तो चलो कॉमन ले लेते हैं। तो देयरफॉर फॉर F1 इज इक्वल टू, चलो Q1 कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, Q2 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आपको, R1 माइनस R2 का क्यूब, R1 माइनस R2 का क्यूब, और ये R1 माइनस R2 प्लस, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर R3 रहेगा, Q3 रहेगा, दिस विल बी Q3, यस। सो Q3 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R3 का क्यूब एंड R1 माइनस R3, और अब सब पे जो है वेक्टर साइन लगा दो, नहीं तो मार्क्स कट होंगे। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, वेक्टर साइन लगा देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या हो गया आपका चार्ज होगा, तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो Q1 देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर टोटल 3 चार्ज थे, ओके, लेकिन हमारा एक्सप्रेशन 2 का आया है, 1 और ये 2, ठीक है। तो हम लोग इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर मान लो सपोज बहुत आइस चार्ज है यहाँ पर, तो हम लोग सिंपली सबको ऐड ही करेंगे ऐसे, ओके, F1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्ज, और यू कैन राइट। तो आपका जो यहाँ पर Q1 जिस चार्ज को आपने कंसिडर किया, कौन से चार्ज पर फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ ऑल अदर चार्जेस, सो Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और समेशन ओवर, तो एक बार रिमूव करने दो इसको, तो ये प्रॉब्लम होता है इससे, लेट मी राइट इट अगेन। हाँ, सो F1 इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, ये तो हमारा कॉमन है। फिर यहाँ पर आपको समेशन का साइन गड़बड़ बन गया, वेट, समेशन, यस। सो I इक्वल टू, अभी देखो समेशन में हर जगह आपको I इक्वल टू 1, आइस चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो I इक्वल टू 1 to n ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर n 1 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 2, why 2, बिकॉज हम लोग 2 to n होगा एक चार्ज पर जिस पर हम लोग फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, ओके, तो वो नहीं आएगा उस पर, तो हम लोग यहाँ पर F1 लिख रहे हैं, ओके। तो हियर इट विल बी चार्ज मीन्स I इक्वल टू 2 to n, ओके, 2 to n, और QI, तो ये हो जाएगा आपका QI मतलब आइस चार्ज, ओके, डिवाइडेड बाय R, देखो यहाँ पर R1 हर जगह है, यहाँ पे भी R1 है, तो R1, और ये यहाँ पर R2 R3 ऐसे, अगर फोर्थ चार्ज होगा तो R4 हो जाएगा, फिफ्थ चार्ज होगा तो R5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो R1, तो हम लोग, मैं इसको यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ, R1, सॉरी ये थोड़ा अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ एक्चुअल में अभी ये इसका टैबलेट पर लिखने का, ओके,
So R1I, राइट, R1I का स्क्वायर, अब फिर से मैं उसको कूलॉम वाले फॉर्म लिख रहा हूँ, स्क्वायर इनटू, अब जो है ऊपर क्या था, R1 माइनस R3, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सही है, R1 माइनस R2 है, फिर यहाँ पर R1 माइनस R3, तो यहाँ पर 1 तो कॉमन है, सो R1I कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर, सो दिस विल बी R1I cap. This is your general form. Okay, in terms of n number of charges you can write. So this is what basically superposition principle students. और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना होता है. इंपॉर्टेंट है डायग्राम अच्छे से लिखना, ये नोटेशन सही होने चाहिए, आपको पूरे 3 जितने भी मार्क्स लिया था पूरा मार्क्स आपको मिल जाता है इसमें. ओके.